Hello. So, I just wanted to say something that as much as I'm enjoying having a bike and riding it around, and I know the functional, practical use of, having a bike or a scooty with you when you are in a new place or anywhere, in fact. But right now, I'm taking a walk to the same usual place where I was crossing every day. And one thing that I realized that there is nothing like walking and taking that slow walk in nature or anywhere else. Like you have no agenda, you don't need to rush anywhere, and you are not planning to reach anywhere and just look at things. Of course, I observed this patch, this place, but I like taking pictures and stopping by and observing, things and the regular things like normal, मतलब मामूली चीज़ें. But walking gives me that space, that zero thought zone, and at the same time, a very silent, thoughtful zone as well, where maybe I'm not pushing myself to think something too hard, but at the same time, I'm thinking something really important and essential. So, plus steps पूरे हो जाते हैं यार, you stay fit. So, any day, I mean, I love to have a company or even not to have a company for walking. I love walking around and yeah, can I show you what I'm seeing right now? Just imagine this beautiful lane covered by all these beautiful coconut trees, and there is almost a sunset time, and you're walking on this. भाई मैं दिल्ली गुड़गांव से आ रही हूँ, and I used to crave for that space to walk around. तो मेरे लिए तो ना यही खुशी हो जाती है. मैं जहाँ भी रहती हूँ, जहाँ भी रहने की कोशिश की है मैंने अभी तक अपने लिए, जो कुछ करना चाहा है उसमें मैंने एक पॉइंट हमेशा रखा है, लाइक आई वॉन्ट टू लिव समवेयर इन नेचर एंड जस्ट लेट मी स्टॉप हियर. See this thing, I could have missed this on a bike, but wow. तो क्या आप वॉक के लिए कन्विंस हो गए हैं या मुझे और फ़ायदे बताने चाहिए? आई नो nobody needs to know this, but yeah, I love walking and stopping by to cute, cool, beautiful houses and the neighborhood, और randomly लोगों को कॉम्प्लीमेंट देना कि आपका घर बहुत सुंदर है. और मुझे हर एक छोटा सा प्यारा सा घर देख के ना ऐसा सा ख्याल आने लगता है कि अरे वाह, यहाँ तो मैं भी रह सकती हूँ, बस इतना ही बड़ा घर चाहिए मुझे किसी ऐसी ही जगह. और तो हाँ, मतलब you see the point, you get lost to all the good thoughts sometimes. And yeah, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे कल बताया है कि जिस रास्ते पे मैं चल के आ रही थी उन्होंने ऑलमोस्ट 2-2.5 मीटर लंबा बहुत मोटा सा सांप देखा है. और ये मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिलेमा है कि मैं जितना ज़्यादा ट्रॉपिकल इंसान अपने आप को अंदर से फील करती हूँ कि आई एम मेड फॉर बीच ओनली, but I have a difficult relationship around the reptiles. So yeah, I mean, pro and cons of a place and a situation. बट यार डील कर लेंगे उससे भी. गोवा में घर होगा, अगर गोवा जैसी जगह में रहने को मिल रहा होगा, इन अ ट्रॉपिकल प्लेस, वार्म वेदर, कोकोनट वाटर, लॉट्स ऑफ इट. तो ये भी सीख लेंगे कि छिपकली, गिरगिट, सांप इसके आसपास
कैसे रहा जाता है इन द को एग्जिस्टेंस। सो या अभी दिखाऊं कैसा है आसपास। यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ओह लेट मी शो यू लाइक दिस। ऐसे यहाँ पे किसी का घर बन रहा है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और अगेन दिस इज सच अ ह्यूज फील्ड अराउंड एंड आई रियली रियली लाइक दिस पर्टिकुलर पैच। वैसे छोटी पतली सी रोड और दोनों साइड ऐसे खाली खाली। सी बस कुछ कहने को नहीं है, ये फ्रेम इतना सुंदर लग रहा है। न्यू एक्टिविटी अनलॉक्ड। कुछ दिनों पहले when me and my friend was going towards the beach, we realized there is a ice cream shop, like a kulfi shop, and we always found this shop empty, like not even a single person standing or buying something. But वो हम दोनों ने ही notice किया था, and one day we decided कि यार उस बेचारे के पास भी रुक जाते हैं, like let's take a stop on that poor shop, at that poor shop. और there was a lady who was crossing by and she smiled looking at my happiness. So बेसिकली हमने ये कुल्फ़ी ट्राई करी और उस दिन हमने बीच पे बैठ के कुल्फ़ी खाई थी। आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं इसे पिघलाते हुए पहुँचूँ। इट कैन बी अ डिज़ास्टर। मुझे बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म करती हूँ। और बेसिकली कुल्फ़ी काफ़ी अच्छी लगी और हम सरप्राइज थे कि लोग खा क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी जनवरी का मौसम इज़ not that bad to have an ice cream, you know. It's pretty much summer here. Look at me. So, yeah. Fun things to do when you are at the beach. Oh, so hello. I realize कि मैं रिकॉर्ड करना तो शुरू कर देती हूँ और फिर बाद में मुझे कभी भी कंक्लूड करने वाला कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि मैंने कुछ शुरू किया था जिसको मुझे कंक्लूड करने की ज़रूरत है. बट एनीवेज, आफ्टर ईटिंग आइस क्रीम फाइनली आई रीच टू द बीच. और थोड़ी देर मैंने एक प्यारी सी शैक पे बैठ के काम किया. मेरा काम आजकल काफ़ी डिफरेंट है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है सोच के कि आई एम थ्रू आउट दैट होल टाइम व्हेन आई से आई एम वर्किंग ऑन समथिंग इज़ रिलेटेड टू अबाउट द क्रिएटिव जूसेस. तो वो सब किया मैंने और सनसेट होने वाला था, और जिसके लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि ओ आई एम क्वाइट लेट फॉर द सनसेट. फिर मैं भाग के आई, मुझे कुछ शॉट्स लेने थे अपने योगा के, इंस्टाग्राम थिंग्स So I hope I got my desired clips and shot. बट इस सब के बीच में एक बैड न्यूज़ है, जो कि जिस बैड न्यूज़ ने मुझे थोड़ी देर तक अफेक्ट किया है. बट एट द सेम टाइम आई रियलाइज़ कि यार कुछ और मीनिंग भी हो सकता है इसका, नहीं? तो एक्चुअली क्या हुआ था, सेम शैक पे मैं कल भी थी, और यहाँ पे कल मैंने मतलब आई फॉरगॉट माई बिकिनी बैग इन द वॉशरूम इन द लू, और मुझे वो घर पहुँच के याद आया. और कल ऐसा हुआ था कि जब मैं व्हेन आई वाज वेयरिंग ऑफ दैट बिकनी, जब मैं वो पहन रही थी तब मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा दिस इज़ द ओल्डेस्ट वन, इट्स टाइम टू रिटायर दिस वन. बस ये मैंने सोचा था, और फिर पता नहीं शाम को चेंज करने के बाद मैं कैसे भूल गई. मुझे घर जाके याद आया, मैंने आज पूछा कि बाय एनी चांस डू यू स्टिल हैव माई बिकनी, एंड दे सेड नो, दैट्स इन डस्टबिन नाउ. तो 2 minutes ऑफ साइलेंस फॉर माई फर्स्ट बिकिनी एवर, जो कि मैं एज अ इमोशनल होल्डर होने के नाते, जिसे मैं संभाल के नहीं रख पाई. मैं पहनती या नहीं पहनती, लेकिन मैं रखती तो हमेशा संभाल के, ये बोल के कि हाँ ये मेरी फर्स्ट बिकिनी थी. बट एनीवेज, देयर इज़ द लाइफ लेसन. शायद मैंने ये मांगा था और मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छा स्विम सूट वेट कर रहा है दुनिया के किसी कोने में. ये सोच के मैं खुश हो सकती हूँ. एंड या दैट्स इट.
all about this day and see this one thing. I think मुझे अभी अनाउंस कर देना चाहिए कि मेरा नेक्स्ट वीडियो किस बारे में होगा. Like I find bright side in anything and I think I should call this my superpower, क्योंकि मुझे अब ना अच्छा लगता है कि मैं थोड़ी देर क्रिप करती हूँ किसी सिचुएशन के बारे में और फिर मेरा दिमाग चलने लगता है कि मैं इसमें अच्छा क्या ढूंढूँ तो मैं ढूंढ लेती हूँ. और ये मेरी एक बहुत बड़ी नेगेटिव ट्रेट भी थी, क्योंकि मैं इतनी ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ कि कई बार मुझे समझ में नहीं आता है कि हाउ टू सेट बाउंड्रीज एंड व्हेन योर टाइम इज़ ओवर टू लीव अ सिचुएशन. तुम हर टाइम अच्छा नहीं ढूंढ सकते हो ज़बरदस्ती व्हेन देयर इज़ नथिंग अच्छा. बट स्टिल आई हैव अ लॉट टू शेयर अबाउट द सेम एंड आई होप इन माई नेक्स्ट वीडियो, और शायद मुझे ये याद भी रहेगा कि मैं क्या कमिटमेंट कर रही हूँ यहाँ पे. So I hope in my next video I will talk about this, and till the time, sending you big love. बाकी पूरा कर लो अपने आप. Sending you lots of love, and thank you for those 8-9 subscribers who are there and watching these videos. I'm feeling super happy about recording and posting these things, because ये बिल्कुल ना बहुत ही फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन लगता है मुझे, कि जब मेरे आसपास लोग होते हैं तो हम कैसे एकदम से किसी चीज़ के बारे में क्रिप करते हैं, सोचते हैं, फिर उसके बाद कुछ अच्छा सोच लेते हैं, एंड दिस इज़ हाउ वी आर लीडिंग आवर लाइफ राइट नाउ. सो सेंडिंग यू लिटिल बिट ऑफ होप एंड गुडनेस इन लाइफ. फाइंड थिंग्स विच मेक्स यू फील ग्रेटफुल अबाउट टुडे. बाकी परफेक्ट तो कहीं पे कुछ भी नहीं है. See you in the next one. Bye.